جب ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ خدا محبت ہے، اور جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کو ہمارے اندر وہ محبت نظر نہیں آتی، تو پھر لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ تو اس بات یسوع کے عظیم اور قادر نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ ایک نیا سیگمنٹ ہم شروع کر رہے ہیں جس کا نام کلام کی سچائیاں ہوگا، اور اس سیگمنٹ کے اندر آپ مختلف لوگوں سے کلام کے مختلف موضوعات پر جو کلام ہمیں بتاتا ہے، جو بائبل مقدس کی سچائیاں ہیں، ان سے واقف ہوں گے۔ تو آج ہم اس سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا میسج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور کلام کی یہ سچائی جو ہے ہم افسیوں کے خاتمے سے دیکھیں گے۔ افسیوں کی کلیسیا کے نام مقدس پولس رسول کا خط، اور اس کا 6واں باب جو کہ اس کا آخری باب ہے، اور اس کی آخری 2 آیات 23ویں اور 24ویں آیت۔ یہاں پر اس طرح سے لکھا ہے: خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے بھائیوں کو اطمینان حاصل ہو، اور ان میں ایمان کے ساتھ محبت ہو، جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں، ان سب پر فضل ہوتا رہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ جیسا کہ آپ نے سنا، میں نے پہلے بتایا کہ یہ خط مقدس پولس رسول نے لکھا، اور یہ افسیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا ہے۔ کلیسیا، جس کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ کلیسیا ایمانداروں کی جماعت ہوتی ہے۔ ایماندار یعنی وہ شخص، وہ اشخاص جو یسوع مسیح کے قیمتی خون سے دھوئے گئے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں خداوند یسوع مسیح کے نام کی ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، جنہوں نے یہ مان لیا کہ وہ اس زمین، اس دھرتی پر جو زندگی بسر کر رہے تھے وہ خدا کے مرضی کے خلاف تھی، اور جو زندگی خدا چاہتا ہے اس کا نمونہ یسوع مسیح کی زندگی کے اندر پایا جاتا ہے، جو انہوں نے زمین پر بسر کی ہے۔ وہ ایماندار ہوتا ہے، اور جو ایماندار ہوتا ہے وہ خدا کے گھرانے کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ خط کلیسیا کو لکھا گیا ہے، ایمانداروں کو لکھا گیا ہے، جو یسوع کے خون سے دھوئے گئے اور اس کے گھرانے میں شامل ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں بدلنے کا فیصلہ کیا اور زندگیاں بدلی ہیں۔ یہاں پر جو ایک بڑی اہم سچائی ہمیں بتائی گئی ہے اس پیسج کے اندر، اس آخری آیت کے اندر، میں ایک دفعہ پھر یہ آیت پڑھتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے: جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں، ان سب پر فضل ہوتا رہے۔ اس زمین، اس دھرتی پر جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، ہمیں زندگی بسر کرنی ہوتی ہے، اور اب وہ زندگی بسر کرنی ہوتی ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے، اس کے کلام کے مطابق ہے۔ سادہ زبان میں اگر میں یہ کہوں، جیسے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہم پہلے تاریکی کی زندگی بسر کرتے تھے، تاریکی کے کام کرتے تھے، اب ہمیں روشنی کے کام کرنے ہیں، خدا کے کام کرنے ہیں۔ اس کو اور اگر سادگی سے بتاؤں تو یہ ہے کہ پہلے ہم جسم کے کام کرتے تھے، اب ہمیں روح کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، جو غلطیوں کے خط کے 5ویں باب کی 18ویں آیت سے آگے 23ویں آیت تک بتایا گیا ہے۔ اور اگر میں اور اس کو سادہ کروں تو عام زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ہم نفرت کی زندگی گزارتے تھے، جھوٹ کی زندگی گزارتے تھے، ایک ایسی زندگی گزارتے تھے جو بے رحمی کی تھی، جس کے اندر مہربانی پائی نہیں جاتی تھی۔ لیکن اب جب خداوند یسوع کو اپنی زندگی دے دی ہے تو ہمیں خدا کی زندگی جو یسوع نے بسر کی ہے، یعنی وہ زندگی جس میں محبت ہوگی، جس میں سچائی ہوگی، جس میں روشنی ہوگی، جس میں پاکیزگی ہوگی، جس میں خدا کی مرضی ہوگی، ہمیں وہ زندگی بسر کرنی ہے۔ تو اس زندگی کو بسر کرنا اس زمین، اس دھرتی پر ایک مشکل کام ہے، کیونکہ ہم جب خداوند یسوع کو نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، ہم ابلیس کی بادشاہی سے نکلتے ہیں، خدا کی بادشاہی میں آتے ہیں، تو بری سوچیں، برے خیالات، برے ارادے، بری عادات ہماری زندگی کا حصہ ہوتی ہیں اور ہمارے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ اب ان کو چھوڑنا اور اس زندگی میں ایک دم سے چلنا جو ہے یہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ پیسج ہمیں یہ سچائی بتاتا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے خدا سے محبت کرنا سیکھا ہے،
यानी जिन्होंने खुदा की मोहब्बत को समझा है और फिर खुदा में यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है, वो अगर उस मोहब्बत में चलते रहें और वो मोहब्बत कभी कम ना हो, तो उन पर ये फजल जारी रहता है कि वो वाली ज़िंदगी जो खुदा चाहता है जी सकते हैं। एक और बात जो आपके साथ इसके एडिशन में आगे बढ़ाते हुए शेयर करना चाहता हूँ, ये जो मोहब्बत है जो खुदा ने दुनिया से की है, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। बाइबल मुकद्दस ये बताती है यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 16वीं आयत में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यानी जो ईमान लाता है वो हमेशा की ज़िंदगी पाता है। अब उस हमेशा की ज़िंदगी को इस ज़मीन पर तजर्बा करना और जीना होता है, जो मैंने आपको पहले बताया है, और ये मुश्किल काम है और उसके लिए हमें खुदा के फजल की ज़रूरत होती है। बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है यूहन्ना की इंजील के 1 बाब की 14वीं आयत में कि फजल और सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत पहुँचे। इससे पहले भेद, चीज़ें, मुकाशफे पुराने यादनामे में जो छुपे हुए थे वो नए यादनामे में मसीह की ज़िंदगी में खुल जाते हैं। और जब हम इब्रानियों के ख़त में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह के आने से मुकाशफा कामल हो चुका है। पैदाइश से मुकाशफा तक जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बातें पहले हम समझ नहीं सकते थे, अब समझ सकते हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने हर शख्स के लिए अपनी जान दी है। जो ईमान लाता है उसे फिर खुदा के रूल कुश का तजर्बा होता है। रूल कुश का बपतिस्मा इसको हम आम जुबान में कहते हैं। जब रूल कुश का बपतिस्मा होता है तो वो फजल जारी होता है जो हमें उस जिंदगी को जीने के लिए एक्टिव कर देता है, जिसको सिर्फ हम समझ रहे होते हैं, सुना होता है, हमारे सामने होता है, तौबा भी कर ली है, खुदा में यीशु को निजात दहिंदा भी कबूल कर लिया, फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। 5 साल 10 साल बुरी आदत नहीं छूटी, बुरी बातें नहीं छूटती, बुरी चीज़ों से वास्ता रहता है, सिगरेट नोशी, शराब नोशी और बहुत सारी और ऐसी चीज़ों से जुड़े रहते हैं जो खुदा को नापसंद है, जो पहली ज़िंदगी का हिस्सा थी, अब नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब वो इसलिए जुड़ी हुई हैं क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, और हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि हम कलाम की सच्चाइयों पर अमल नहीं कर पा रहे। जो खुदा चाहता है, जो ज़िंदगी खुदा चाहता है हम जिए, वो जी नहीं पा रहे। तो उसके लिए हमें फजल की ज़रूरत है, उसके हमें रूल को उसके साथ की ज़रूरत है। खुदा यीशु मसीह ने ये कहा जब वो आसमान पर जाने के लिए अपने शागिर्दों से बातें करते थे कि मेरा वक्त नज़दीक है और मैं गैर कौमों के हाथ में हवाले किया जाऊँगा, मैं मसलूब किया जाऊँगा, फिर मैं जी उठूँगा, फिर मैं वापस चला जाऊँगा। तो शागिर्द थोड़े परेशान होते थे कि हमारे साथ क्या होगा, यीशु मसीह तो वापस चले जाएंगे, हमारी ज़िंदगी में क्या होगा। तो खुदा यीशु मसीह ने एक अहम तरीन बात ये बताई। उन्होंने कहा यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब में कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा जो बाप से सादर होता है, और जब रूल कुछ आएगा तो वो तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें सिखाएगा कि ये ज़िंदगी कैसे जी जाती है, जो ज़िंदगी मैंने ज़मीन पर जी है, जो खुदा बाप की मर्ज़ी की ज़िंदगी है। सो उसके लिए रूल कुछ का होना, खुदा के फजल का होना ज़रूरी है, क्योंकि फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुँचे है। यीशु मसीह ने बताया कि रूल कुछ इसलिए अभी तक नाज़िल नहीं हुआ क्योंकि यीशु मसीह अभी खुद जलाल तक नहीं पहुँचे, तो उन्हें अपने शागिर्दों को ये भी बताया। और जब यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए और उसके बाद हम देखते हैं कि 120 की जमात पर जिन्होंने खुदा की बातों का यकीन किया, यीशु की बातों का यकीन किया, ईद पेंतीकोस्त के दिन रूल कुछ का नज़ूल और उनकी ज़िंदगी बदली, उनके अंदर दिलेरी आ गई, सच्चाई पर कायम हो गए, जो बातें वो कहते थे उन्होंने उस पर अमल करना शुरू कर दिया, जो कलाम की तालीम वो देते थे वो उस पर ख़ुद भी अमल करते थे। ईद पेंतीकोस्त के दिन जो रूल कुछ का तजर्बा उन्हें हुआ, उसके बाद जब रूल कुछ उनकी ज़िंदगी के अंदर उतर गया तो वो ज़िंदगी जीने के काबिल हुए। ये खुदा का फजल उनकी ज़िंदगी पर कसरत से जारी हुआ। अब ये उन सब पर जारी रहता है जो खुदा में यीशु मसीह से लाजवाल मोहब्बत रखते हैं। लाजवाल मोहब्बत जो कभी ज़वाल पजीर नहीं होती, ये कम नहीं होती। जिस पैशन से आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, उसी पैशन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में ये फरमाया था कि जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करेगा। अगर हम उससे वही मोहब्बत रखते हैं
जो हमने उस वक्त रखी जब यीशु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। और इस डर से यीशु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया कि हम जहन्नम में चले जाएंगे, बल्कि इस सच्चाई से यीशु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया क्योंकि ये खुदा की मोहब्बत है और वो मुझे जहन्नम से बचाना चाहता है, वो मुझे अब्दी ज़िंदगी देना चाहता है। उसी मोहब्बत में अगर हम बढ़ते चले जाएंगे तो खुदा का फजल हमेशा हमारी ज़िंदगियों पर जारी रहेगा और हम वो ज़िंदगी जिएंगे। एक आखिरी बात करके आज इस पैगाम को क्लोज करते हैं। लोग हमारी ज़िंदगियों के अंदर उस ज़िंदगी को जिसके हम प्रचार करते हैं अमली तौर पर देखना चाहते हैं। जब हम लोगों को ये बताते हैं कि खुदा मोहब्बत है, जब खादम लोग जिनमें मैं भी शामिल हूँ ये बताते हैं खुदा मोहब्बत है, और जब लोग हमारे पास आते हैं और उनको हमारे अंदर वो मोहब्बत नज़र नहीं आती, तो फिर लोग ठोकर खाते हैं। वो इस बात से परेशान होते हैं कि ये लोग जो मोहब्बत का, सच्चाई का, पाकीज़गी का, रहम का, मेहरबानी का, तर्स का प्रचार करते हैं, जब इनके अंदर ये नहीं है तो फिर हमें भी मसीह के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आज आपके साथ ये बात कर रहा हूँ, आपको हौसला देना चाहता हूँ कि हम वो ज़िंदगी जी सकते हैं ताकि लोगों के लिए बरकत का बाइस बने। अगर हम खुदा यीशु मसीह से मोहब्बत रखते रहें तो ये फजल हमेशा हमारी ज़िंदगियों पर जारी और सारी रहेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।